here. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते कि आज हम सभी को तूने यहाँ पे इकट्ठा किया है। Thank you, Lord. We want to come and praise you and worship you. हम चाहते हैं कि प्रभु हम यहाँ पे आए और आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। We want to hear your words that lives can be changed. हम आपके शब्दों को सुनना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन बदल जाए। And fill us with your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से हमें भर प्रभु। Give all the brothers who speak your utterance. हर एक भाई जो यहाँ पे आके प्रचार करेंगे उनको अभिषेक का प्रभु। You speak to each one of our hearts individually. ताकि तू उनके द्वारा हम हर एक व्यक्ति के हृदय से तू बात कर पाए प्रभु। Thank you, Lord, in Jesus' name. धन्यवाद प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। So here, many brothers share, and many young brothers also share today. We'll start off with brother Raj and brother Swami. After that, we'll hear brother Ashton, and then we'll hear brother Patrick and Michael and brother Vijay. So one by one. So we'll speak for about 4 to 5 minutes each. The people will begin, they'll speak a longer time. Others can speak for 4 to 5 minutes or 3 to 4 minutes, so that all of us can be enough time to finish by around 12:30. I thank God for the privilege I could share His word. धन्यवाद देता प्रभु को ये मौके के लिए कि मैं प्रचार कर सकता हूँ। I was meditating, thinking about Job's life, मैं जोब के जीवन के ऊपर ध्यान कर रहा था and I was challenged and encouraged. The one outstanding character of Job is faith in God. और मेरे को बहुत ही चुनौती और प्रोत्साहन मिला जोब के चरित्र के एक बहुत ही अच्छे गुण को देख के, और वो है उसका विश्वास प्रभु के अंदर। We could see him from his own confession what kind of faith he had in Job chapter 13 verse 15. उसके शब्दों से हमें मालूम पड़ता है कि उसके पास किस तरीके का विश्वास था जब हम लोग उसके पुस्तक के 13 अध्याय को पढ़ते हैं। Somebody could read कोई पढ़ सकता है? chapter 13 verse 15. अध्याय 13 उसमें वाक्य 15। So we see that the confession of the kind of Job, the kind of faith he had, tremendous faith. That's what he could express, he could testify to the world. और इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके का अद्भुत विश्वास था जोब के पास प्रभु के अंदर, और उसकी वजह से वो गवाही दे पा रहा था इसके बारे में। In Hebrews 11:6 we all know that without faith we can't please God. इब्रानी 11:6 में हम लोग देखते हैं कि बिना विश्वास के हम लोग कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। The kind of faith Job had, which is really pleased to God. एक ऐसा विश्वास जो जोब के पास था जिससे प्रभु बहुत ही प्रसन्न थे। That's why God's eyes were upon him. इसलिए प्रभु की जो आंखें थी हमेशा जोब के ऊपर रहती थी। He could see that the deep down the heart of the Job, that there is a tremendous faith in him. और प्रभु देख सकते थे कि उसके मन के अंदर बहुत ही गहरा विश्वास था प्रभु में। That's why God could see that fear towards him, और इसलिए प्रभु देख पा रहे थे कि उसके मन में प्रभु की ओर एक भय भी था। and God could see the love towards him. और प्रभु देख पा रहा था कि उसके मन में प्रभु के लिए एक प्रेम भी था। That's why God himself could stand with Job and he could testify that such a man is there. इसलिए प्रभु स्वयं जोब के बारे में ये गवाही दे सकते थे कि ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है इस दुनिया में। So God's eyes are always upon such people. तो हमेशा प्रभु की जो नजर रहती है ऐसे लोगों के ऊपर रहती है। And also we see that another person's eyes also upon such people. और हम लोग देखते हैं कि और भी दूसरे कुछ लोग होते हैं जिनके नजरें ऐसे लोगों के ऊपर रहती हैं। That is Satan. We read that even he was roaming around throughout the world and he left all the carnal believers, carnal Christian disciples. His eyes were always upon such people, those who have a tremendous faith and love towards God and fear of God. और दूसरा व्यक्ति है शैतान। वो हमेशा ऐसे ही करता है। जो भी दुनिया में जो इतने धार्मिक विश्वासी नहीं होते, बस नाम के लिए विश्वासी होता है, उनको वैसे ही छोड़ देता है। लेकिन जो जोब के जैसे जो विश्वासी होते हैं उनके पीछे वो पड़ जाता है। So that's why I could see that the faith in Job was very much challenge for me. तो याकूब जोब का ये विश्वास देख के मुझे बहुत ही चुनौती मिली है उससे। We all know that what happened to Job's life. हम लोग सभी जानते हैं कि जोब के जीवन में क्या हुआ था। He lost one by one everything. एक एक करके वो हर एक चीज खोते गया। And he could get the bad news after bad news. और एक के बाद एक उसको बुरा समाचार ही मिल रहा था। One comes and said you lost all the belonging. एक व्यक्ति ने आके उसको बोला कि तुम अपना सारा संपत्ति खो चुके हो। One came and said your sons are died and your children are gone. एक
एक व्यक्ति ने आके बोला कि तुम्हारे जितने बच्चे हैं वो लोग मर चुके हैं। We could see that bad news after bad news, continuously bad news towards for him. और हम लोग देख रहे थे कि एक के बाद एक उसको बस बुरे समाचार ही मिल रहे थे। He lost almost everything in his life, वो अपने जीवन में लगभग हर एक चीज खो बैठा था, but one thing he did not lose, that is his faith. लेकिन एक चीज उसने नहीं खोया और वो है प्रभु में विश्वास। That's why he could thank God, he could praise God, and not only that, he could worship God in spite of losing all those things. और इसके वजह से इसके बावजूद कि वो हर एक चीज खो बैठा, फिर भी वो प्रभु को धन्यवाद दे सका, उसकी स्तुति कर सका और आराधना कर सका। It is easy to thank God, praise God, worship God when we get from God. स्तुति करना या आराधना करना बहुत ही आसान होता है जब प्रभु हमें आशीष देता है। When we have good job, a good wife, a good children, good house, and everything goes well with us. Good health, we may praise God, worship God very much. जब हमें अच्छा काम रहता है, अच्छा परिवार रहता है, अच्छा घर रहता है, तब लोग प्रभु की बहुत ही अच्छे से स्तुति और आराधना कर सकते हैं। That I was seeing my own life, when everything goes well, we can easily to praise God, thank God. ये मैंने खुद के जीवन में भी देखा है कि जब हर एक चीज अच्छा होता है मेरे साथ, तो उस समय हम लोग बहुत ही अच्छे से प्रभु की आराधना कर सकते But हैं। what if everything goes bad, that he lost everything, that we see the Job's life, that he lost everything, but he could still worship God. God, I worship you, thank you for taking away all my children, all my belonging, all my everything, all my servant, everything, because I have you in my life. लेकिन क्या होगा जब हर एक चीज जाने लगता है हमारे जीवन से? क्या हम लोग जोब की तरह आराधना कर सकते हैं, जैसे जोब ने बोला था कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे बच्चों को ले लिया है, मेरी संपत्ति को ले लिया है, हर एक चीज ले लिया है, लेकिन मैं फिर भी तेरी आराधना करता हूँ। Bible says he was the richest man, बाइबल में लिखा है कि वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, yet he did not have an excuse to worship God, he could praise God. लेकिन फिर भी वो हमेशा प्रभु को आराधना देता था और उसको उसकी स्तुति देता था। Many times I will see that God bless us so much in our life, कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रभु हमें बहुत भरपूरी से आशीष देता है and we get engrossed in those blessings and we forget God. और फिर हम लोग उसी आशीषों में पड़ जाते हैं और फिर प्रभु को भूल जाते हैं। But that's what we see the Job's life. He was not attached, even least bothered about earthly things. Even though he lost all earthly belongings, all his blessings, but yet he could worship God. That's what challenged me. God, give me that heart, give me that faith. When I lose anything and everything, but can I have such heart that I can worship you still? तो लेकिन जब हम लोग देखते हैं जब वो हर एक चीज खो बैठा जोब, इसके बावजूद उसको कोई भी संसार की चीजों में कुछ उसको दिलचस्पी नहीं थी, वो फिर भी प्रभु की आराधना कर रहा था और स्तुति कर रहा था। और वो देख के मैं भी बोलता हूँ कि प्रभु मुझे भी इसी तरीके का मन दे कि मैं हमेशा तेरी आराधना कर सकूं, भले मेरा परिस्थिति कैसे भी हो। And another thing that we not only had a faith in God, he had because of his faith, he had a fear towards God. और सिर्फ उसके पास विश्वास ही नहीं था, लेकिन ये विश्वास के द्वारा उसके मन में एक भय भी था प्रभु की ओर। And that fear of God kept him away from all sort of sin. और वो जो भय था प्रभु का, उसको हर एक पाप से दूर रखता था। He not only sin in deeds, also sin in words. वो सिर्फ कामों में पाप नहीं, लेकिन अपने शब्दों के पापों में से भी दूर रहता था। Bible says fear of God is the beginning of the wisdom. बाइबल में लिखा है कि प्रभु का जो भय है वो बुद्धिमानी का शुरुआत होता है। He had tremendous fear for God. That's why he did not sin. That's what Bible says, and God testifies. तो उसके मन में ये प्रभु का बहुत ही अद्भुत भय था और उसके वजह से वो कभी पाप नहीं करता था और बाइबल में भी इसका गवाही दी गई है। Not only for himself, but he feared that his children will sin or might have sinned. That's why he was pleading for his children also. We can read. और सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं, लेकिन वो ये भी भय रखता था कि उसके बच्चे भी पाप में नहीं पड़े और इसलिए हमेशा उनकी ओर वो प्रार्थना करता था। When things went bad, even his wife was not encouraging, but yet Bible says in his lips he did not sin even towards wife. हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि जब भी उसके साथ हर चीज बुरा हो रहा था, उस समय उसकी पत्नी भी उसके साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उस समय भी वो अपने शब्दों से अपनी पत्नी की ओर से पाप नहीं किया। Then no one stand with him, no one could encourage him. Even he saw that God himself take away everything, allowing everything to go away. Yet he could not curse God, he did not curse God, he did not blame God. जब हम लोग देखते हैं कि जब भी प्रभु ने हर एक चीज उससे लेने लगा और उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था, लेकिन उस समय भी उसने कभी प्रभु को दोषी नहीं ठहराया, बस प्रभु को स्तुति करते गया। I was thinking about that only. God, give me that heart, give me that fear, that towards you, so that I will not sin, either my deed and my words. मैं बोला था प्रभु मुझे भी इसी तरीके का मन दे, इसी तरीके का भय दे, ताकि भले कुछ भी हो मेरे जीवन में मैं कभी भी तेरी और पाप नहीं करूं। I have seen my own life, even with my wife, God. I have seen myself when things are going bad, when something my wife says and feels that there are some challenges she gives, and how I am taking it, how I am handling it. और मैं खुद के जीवन में भी अनुभव करता हूँ कि जब बुरा समय चलता रहता है, उस समय अगर मेरी पत्नी ने मुझे कुछ कहा तो उस समय मैं किस तरीके से उसे संभालता हूँ, क्या मैं पाप में पड़ता हूँ या मैं कोई अच्छी तरीके से संभालता हूँ। Sometimes she tells the truth, कितनी बार तो वो सच बोलती है, but many times I have seen my own life. There is so much tremendous pride in me. I am not taken, but I am not able to handle properly. लेकिन मैं देखता हूँ उस समय कि कितना मेरे जीवन में मेरे अंदर घमंड है कि मैं वो सच्चाई को भी सही तरीके से नहीं ले पाता। So like that, many situations I have seen my own life. God, give me that fear where I will not fall into sin. तो ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों में मैं हमेशा प्रभु को बोलता हूँ कि प्रभु ये भय तो मुझे दे ताकि मैं पाप में ना पड़ूं। And I think that everything goes bad with Job.
तो हम लोग देखते हैं कि जॉब के साथ बहुत कुछ बुरा होता रहता है, Nothing encouraging for him. कुछ भी प्रोत्साहन वाली चीज उसके साथ नहीं होती है। When he is at home, there is no encouragement. जब वो घर में है उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा There है, are no children, all the children are gone. क्योंकि सारे बच्चे मर चुके हैं। No servants to encourage, no servants are gone. कोई नौकर नहीं है क्योंकि नौकर भी चले गए हैं। Wife is with him, but no encouraging from पत्नी wife. उसके साथ है लेकिन उससे उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। When go to field, there is nothing encouraging. Everything he lost in the field. वो खेत में जा रहा है लेकिन वहाँ पे भी कुछ प्रोत्साहन नहीं है क्योंकि सब चीज वो खो चुका है। No encouragement in the business at work. व्यापार में भी कोई प्रोत्साहन नहीं है। And even he come to the three friends, his close friends or preacher friends, no encouragement from them. तो जब अपने दोस्तों के पास जाता है, 3 दोस्त जो प्रचारक होते हैं लेकिन उनसे भी उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। We may be going through similar situations sometime in our life. हो सकता है कि हमारे जीवन में भी हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। Even if you look at his own health, is not encouraging. All boils in his body. जब वो अपने स्वास्थ्य की ओर देखता है, वहाँ पे भी उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारी फोड़ी आए हैं। Nothing seems going well. Everything going bad after bad in his life. तो उसके जीवन में कोई भी चीज अच्छा नहीं हो रहा है, एक के बाद एक बस बुरा ही हो रहा है। The same thing. Similarly, we might be going through sometime our challenges. उसी तरीके से हम अपने जीवन में भी कई सारी चुनौतियों के द्वारा गुजरते होंगे। God give me. I don't have any encouragement at home. और हम लोग बोलते नहीं कि प्रभु घर में मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, Even at my job. मेरे काम में भी नहीं मिल रहा। But at least when I come to church and at Job went to get 3 preachers and even though they preaching, but he could not find any encouragement. और जॉब जब भी उसके दोस्तों के साथ था, वो तीनों दोस्त उसके ऊपर प्रचार कर रहे थे लेकिन उसमें भी उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। Sometimes we come to church and we find God. At least I'll go to church today. I'll get some encouraging words. और हम लोग सोचते हैं कि प्रभु आज मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, वहाँ पे शायद से मुझे कुछ प्रोत्साहन वाले शब्द मिलेंगे। Even after, in spite of coming to church and hearing lot of 3, 4, 5 preachers, still God, I'm still empty. I'm not getting encouraged. और फिर हम लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं कलीसिया में आया, 3 या 4 भाइयों को सुना लेकिन उसके बावजूद मुझे अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा है। Job was going through tremendous challenges in his life. तो जॉब अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों के द्वारा गुजर रहा था, But one thing, he kept on his faith on God. लेकिन एक चीज उसने नहीं खोया और वो है उसका विश्वास प्रभु में। That's what he can challenge me and each one of us. We should have faith only towards God. When we have faith in God, now no matter whatever happens in our life, at home or job or church, and when God is with us, and that's more than everything. तो उसी से हमें भी चुनौती लेनी है कि भले चाहे कोई कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, अगर प्रभु के अंदर हम लोग विश्वास रखेंगे तो हम लोग हमेशा प्रोत्साहित रहेंगे। But Job later on, he might have realized and understood that everything happening in my life for my own good. और बाद में शायद से जॉब को ये एहसास हुआ रहेगा कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, जो भी परेशानियां मैंने उठाई, वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। God used all his situations, circumstances. God used even Satan. God used even 3 of his preachers. Instead, he might have not taken well. He might have felt not comfortable. But later on, he might have thanked God, sending those preachers to expose his own heart, own selfishness, own self-righteousness, own pride, own arrogance. That's what we can see at the end of the life. We can see that Job could see. That's what many times we fail to see. That's why even after coming to church, we have feel God. There's no encouragement. There's no love. But end of the day, God will show us one day. We are challenged and corrected and rebuked because God's discipline, God loves us. That's why He does everything. तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने हर एक परिस्थिति का इस्तेमाल किया, शैतान का इस्तेमाल किया, उसके 2-3 प्रचारक दोस्त थे उनका भी इस्तेमाल किया, ताकि अंत में जॉब के साथ ही अच्छा हो। और भले उस समय जॉब को वो 3 प्रचारक की और सुनने को इतना अच्छा नहीं लगा रहेगा, वो सोचता रहेगा लोग वो क्या बोलते रहेंगे, लेकिन उसके द्वारा प्रभु ने उसको दिखाया कि उसके मन में कितना घमंड था, कितना उसके खुद की धार्मिकता के ऊपर उसको विश्वास था। उसी तरीके से जब हम लोग कलीसिया में आते हैं, भले हमें ऐसा लगता हो कि मुझे इतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, प्रेम भरे शब्द नहीं मिल रहे सुनने के लिए, लेकिन आगे जाके हमें मालूम पड़ेगा कि इन सब चीजों के द्वारा प्रभु ने हमें प्रोत्साहन दिया है, हमें सुधारा है। Today we all know that Romans 8:20, everything happens good for those who love Him. रोमी में हम लोग जानते हैं वो जो वचन है जिसमें लिखा है कि हर एक चीज अच्छे के लिए होता है उन लोगों के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। We can thank God, praise God for such a wonderful words which is encouraging each one of us. तो इतना अच्छा प्रोत्साहन भरा शब्दों के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। But Job did not have such word. But Job could have own conviction. He could confess one greatest word that we can encourage each one of us today. प्रभु के पास, जॉब के पास वो वचन नहीं था, लेकिन उसके पास एक गवाही थी जो हमेशा वो कबूलते रहता था, और वही चीज हम लोग भी बोल सकते हैं। You can read Job chapter 23 verse 10. हम लोग जॉब 23 में जाएंगे, उसमें वाक्य 10। जॉब 23 उसमें वाक्य 10। हिंदी में पढ़िए। Amen. That's what we can see the greatest confession of from Job himself through his experience. I know what God is doing with me.
at the end, I will come forth as a gold. That is a faith he could confess to in front of Satan and people. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जोब का अद्भुत गवाही और उसका विश्वास देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि ये सारे जो अनुभव जिसके द्वारा मैं जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इसके द्वारा मैं सोने के जैसे खरा आने वाला हूँ. And then we see that Job's life not only he had a faith in God or fear of God, and also he had a heart of merciful or forgiving others. और हम लोग देखते हैं कि जोब के पास बस एक विश्वास और भय नहीं था प्रभु की ओर, लेकिन उसके पास एक दयालु मन भी था कि वो दूसरों को माफ भी कर सके. He could be merciful to his wife. वो अपने पत्नी की ओर करुणा रख सकता था. He could be merciful to even those 3 friends at the end. वो अपने जो 3 दोस्त थे उनकी ओर भी रहम दिल रह सकता था. That's why when the friends were in need, when they went to God and God said, go to Job, he will pray for you and he will forgive you, he will bless you. और हम लोग देखते हैं कि वो जो 3 दोस्त आगे जाके जब खुद जरूरत में आते हैं और वो लोग प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु बोलता है कि तुम जाके जोब से बोलो कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, और जोब उनके लिए प्रार्थना करता है. At the end, those 3 preacher friends come to Job at the end and they asked Job to pray. और जोब फिर वो 3 दोस्त आके जोब को बोलते हैं कि जोब आप हमारे लिए प्रार्थना करो. Job would have thought, all these days you all keep sat me, but why I should pray for you? और जोब उस समय सोच सकता रहेगा कि इतने सारे दिन तुमने मुझे इतना परेशान किया है, क्यों मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं. But he had a heart of humble heart, broken heart, and he was merciful like God was merciful to him, and he could pray for them as he was praying. And that is the time God answered not only the prayer of those prayers, but also God blessed Job later and double the portion. That's what we could read in the chapter 42. लेकिन उस समय जोब के पास बहुत ही रहम दिल वाला मन था. उसने सभी को माफ कर दिया और एक नम्र तरीके से उसने उनके लिए प्रार्थना की. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने सिर्फ वही प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने जोब को भी बहुत ही अच्छा आशीष दिया. उसको फिर हर एक चीज का 2 गुना आशीष दिया जो उसके पास पहले था. When we are merciful to others, when we love towards others, when we pray for others, God bless not only them, also bless us. तो जब हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों की ओर करुणा दिखाते हैं, तो लोग प्रभु सिर्फ उनको ही आशीष नहीं देता, लेकिन हमको भी आशीष देता है. So that's what Bible Jesus said, be merciful as I am merciful to you. इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु बोलते हैं कि दूसरों की ओर रहम दिखाओ जैसे मैंने तुम्हारी ओर दिखाया है. So out of all this in my land, I learned one thing, that God give me that faith which Job had in my life. तो ये सभी चीज के द्वारा मैंने ये सीखा है और मुझे ये चुनौती मिली है कि मैं भी प्रभु से मांगू कि प्रभु मुझे इस तरीके का विश्वास मेरे जीवन में भी दे. I know all. One thing is the faith, even which God only initiated initially the faith in me. मैं जानता हूँ कि एक चीज है, मैं जानता हूँ कि जो मेरी जो विश्वास है उसका आरंभ मेरे जीवन में प्रभु ने किया है. My prayer is, God, please increase my faith in every situation in my life, no matter whatever happens. Help me to have faith in grow in faith, so that I could endure all those challenges, trials, and sickness or disease, anything comes upon me. तो यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाते जाए, भले कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बीमारी आए मेरे जीवन में, लेकिन मैं हमेशा प्रभु में बढ़ते जाऊं और मेरा विश्वास उसमें हमेशा रहे. Because there are so many times, so many challenges that come across my life. I have lost my faith, I lacked faith, I was discouraged, and even there are times I have depressed. क्योंकि कितने बार ऐसे हुआ है कि जब कोई मुश्किल परिस्थिति मेरे जीवन में आई है तो या तो मैं निराश हो जाता हूँ, या तो अपना विश्वास खो बैठता हूँ और फिर निराश हो जाता हूँ. So that's why my prayer is, God, please increase my faith and keep me faithful. इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मैं हमेशा बोलूं, प्रभु तू मुझे श्रद्धालु रख और मेरा विश्वास मेरे मन में जगाए रख. That's why Jesus said to Peter that Satan asked the permission to sift you as a wheat, but I have prayed for you so that you will not lose faith. और हम लोग देखते हैं कि कैसे वहाँ पे प्रभु यीशु पतरस को बोलते हैं कि शैतान ने मेरे से अनुमति मांगी है कि वो तुम्हारा विश्वास को हिला दे, लेकिन मैंने प्रभु से ये प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास ना हिले लेकिन डटे रहे. That's a tremendous encouragement for me and each one of us. Whenever whatever the challenges, situation, temptation we go through, even we fall into any sort of sin, but one thing God's encouragement to each one of us is not to lose faith on His love. तो हम सभी के लिए एक प्रोत्साहन भरा वचन है कि भले हम कोई भी परिस्थिति से जाए या कोई भी बड़े पाप में पड़ जाए, लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि प्रभु हमसे प्रेम करता है और ये विश्वास हमें हमेशा उससे रखना है. At the end of Job's life in James we read chapter 5:11 to 12, it says James could testify that God was so compassionate and merciful. और हम लोग देखते हैं जोब के पुस्तक के अंत में कि कैसे जो वहाँ पे गवाही दे रहा है कि प्रभु हर एक चीज में वो श्रद्धालु रहा है और वो रहम दिल रहा है. No matter how much or we go through, how much or we lose, how much or we fail, but God is so compassionate and merciful. That's what we can get encouraged from Job's life, and that's what word encourage each one of us today. तो भले हम कितना भी हमारा विश्वास खो बैठे या कोई भी पाप में पड़े, लेकिन प्रभु हमेशा हमारी ओर विश्वासमंद रहता है और हमेशा हमें प्रोत्साहन देता है, और ये हम लोग जोब के जीवन से भी सीख सकते हैं. Another thing is when we go through suffering, we need the grace of God to endure it. और एक चीज ये है कि जब हम लोग परेशानी के द्वारा गुजरते हैं, हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत होती है. That's why even King David in his prayer, we can read the verse finally. Psalm chapter 51. भजन संगीता में जाएंगे 51, भजन संगीता verse 11. वाक्य 11.
हिंदी में पढ़ेंगे। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। This is what a prayer of David, that we all can have such prayer. God, that's my prayer also. God, don't take away or fill me with the Holy Spirit each day, so that I will have enough grace to endure such challenges, trials, and temptation in my life, where I will not fall into or will not yield to any temptation, where I will be able to overcome. Because God is interested in each one of us for us to become overcomer. तो यही प्रार्थना दाऊद की हम लोग खुद की भी बना सकते हैं कि प्रभु तो हर रोज मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर और मुझे अनुग्रह दे, ताकि जब भी अलग अलग परेशानियां मेरे सामने आए या पाप मेरे सामने आए, मैं उसमें पढ़ूं नहीं लेकिन उसके ऊपर विजेता बनूं, क्योंकि प्रभु भी चाहता है कि मैं एक विजेता वाला जीवन जीऊं। I thank God for such example like Job. मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को उदाहरण के लिए, जोब के उदाहरण के लिए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I thank for the encouraging verses. मैं धन्यवाद देता हूं प्रोत्साहन वाले शब्दों के लिए। When Job lost everything, जब जोब ने हर एक चीज खो बैठा, he immediately worshipped God. उसने तुरंत प्रभु की आराधना की। Why did he worship God? क्यों उसने प्रभु की आराधना की? How a person who lost everything can worship God? कैसे एक व्यक्ति जो हर एक चीज खो चुका है प्रभु की आराधना कर सकता है? Can we do like this? क्या हम लोग कर सकते हैं उसी तरीके से आराधना? We can do. हम लोग कर सकते हैं। Job's heart was only with God, जोब का जो मन था वो बस प्रभु के ऊपर ही बसा था, not in the things of this world, ये संसार की चीजों के ऊपर नहीं बसा था, not his own children. उसके बच्चों के ऊपर भी नहीं लगा था। His full heart is with God. उसका जो पूरा मन था बस प्रभु की ओर ही था। If we keep our full heart with God, we can also worship. अगर इसी तरीके से हम लोग भी अपना मन पूरी तरीके से प्रभु की ओर ही रखेंगे तो हम लोग भी इसी तरीके से आराधना कर सकते हैं। Luke chapter 15, लूका चैप्टर 15 verse 16. वाक्य 16। This is a story everybody knows. ये कहानी से सब वाकिफ है। The prodigal son got all his riches and went away from his father. यहाँ पे जो छोटा बेटा होता है वो सारे अपनी जो उसका जो हिस्सा रहता है उसके पिता के संपत्ति का वो लेके चला जाता है। He enjoyed this world, spent all the riches. तो वो सारा धन वो इस दुनिया की मौज मस्ती में उड़ा देता है। Finally, आखिर में 16 verse. वाक्य 16, He would gladly have filled his stomach with the parts that swine ate, and no one gave him anything. वो खुशी खुशी अपने पेट को उस खाने से भर लेता जो खाना वो सुअर खा रहा था, लेकिन फिर भी उसको कोई कुछ नहीं दे रहा था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, shortage of food. खाने की कमी, Even the pig's food also he did not get. वो जो सुअर का जो खाना था वो भी उसको नहीं मिला। Acute shortage. एकदम बहुत ही जबरदस्त कमी थी खाने की। So he became like this state. तो वो एकदम ऐसे गंदी परिस्थिति में आ गया था। Sometimes कभी कभी we also meet such a shortage. हम लोग भी अपने जीवन में एक कमी को, इस तरीके की कमी को अनुभव करते हैं। Why? क्यों? Because we come away from God. क्योंकि हम लोग प्रभु से दूर होते हैं। If we come away from God, अगर हम लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं everything becomes shortage. तो हर चीज की कमी होने लगती है, Sin abundance. लेकिन पाप की कमी नहीं होती। Yes, because of sin only we meet shortage. और पाप की वजह से ही हमारे जीवन में कमियां आने लगती हैं। So what should we do? तो हमें क्या करना है? Repent, पश्चाताप करना है, return back to God, प्रभु के पास वापस जाना है, return back to Father. अपने पिता के पास वापस जाना है। Our God's love is like love of our Father. हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे पिता के प्रेम के जैसा है। Jesus calls us, come to me. प्रभु यीशु बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, I will give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा, I will give you riches of soul. मैं तुम्हें आत्मिक धन दूंगा। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Brothers asked me to share what we gave us yesterday to read about Job, and as I read, this is what the Lord was talking to me. और
ब्रदर ने मुझे बताया कि अय्यूब के इसमें से हमको मनन करना है और फिर उसमें से कुछ संदेश को बताना है, और इसी बात को मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। I got 1 Corinthians 3:19. और मेरे पास पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय उसका 19वां वचन है। For the wisdom of this world is foolishness to God. As it says in the book of Job, God uses man's own brilliance to trap him. He stumbles over his own wisdom and falls. क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसे अय्यूब की किताब में भी लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। In Job's story, the Lord showed me Job, his friends, his wife, the young man, all of them together, what wisdom they were using. और अय्यूब के किस्से में भी परमेश्वर मुझे दिखाया कि किस तरह से उसकी पत्नी, उसके दोस्त, बाकी के जो सारे लोग थे, वो कैसे अपने खुद के अक्लमंदी को इस्तेमाल कर रहे थे। Every person is there, righteous man Job. और वहाँ पर जो सारे लोग थे वो धर्मी लोग थे। No, righteous man Job, his friends who were there. और वहाँ पर जो धर्मी व्यक्ति अय्यूब और फिर उसके सारे जो दोस्त थे। But all their behavior to the Lord was all foolishness to God. लेकिन उनके सारे जो बर्ताव परमेश्वर की ओर थी वो सारी मूर्खता थी। And they all stumbled over their own wisdom. और अपने खुद के ज्ञान में, अपने खुद की चतुराई में वो फंस गए। Each tried to show that he knows more than the other. और हर एक व्यक्ति यही बताना चाहता था कि वो दूसरे के बदले में उसके पास अधिक ज्ञान है और वो ज्यादा जानता है। Then in Job 42, और फिर अय्यूब 42 में, Job 42:7. और अय्यूब के 42वें अध्याय उसका 7वां वचन। I am angry with you and with your 2 friends, for you have not been right in what you have said about me, as my servant Job was. और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफाज से कहा कि मेरा क्रोध तेरे ओर और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसा ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही है। How often we make judgment on others. और कितनी बार हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। How often we try to say this person is good, this person is bad. We try to make judgment every moment. और कितनी बार हम कहते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। कितनी बार हम दूसरों पे दोष लगाते रहते हैं। But the Lord says here, I am angry with you. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे क्रोधित हूँ। And with your 2 friends. और तुम्हारे 2 दोस्तों के साथ। So all 3 of them, what they said about Job. और वो सारे 3 लोग जो अय्यूब के बारे में उन्होंने बातें की। So the Lord was telling me often that you try to make judgments. When you see somebody, you try to judge that person, whether good or bad. और परमेश्वर इसी के जरिए से मुझसे बातें की कि तुम दूसरों को देखकर तुम उन पे दोष लगाते हो, फिर चाहे वो सही हो या बुरा हो, तुम दूसरों के नुक्स को निकालते हो। What we do is wrong. हम जो करते हैं वो गलत है। Only the Lord can judge all of us. और सिर्फ परमेश्वर ही है जो सभी लोगों का न्याय कर सकता है। And here the Lord, the friends of his were also spiritual. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त भी आत्मिक हैं। But the Lord said, you better go and give your offerings. Let Job forgive you, then I will forgive you. लेकिन फिर भी वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तुम पहले जाके माफी मांगो, अय्यूब ने तुमको क्षमा करने के बाद मैं तुम्हारे भेंट को स्वीकारूंगा। I will accept his prayer on your behalf and won't destroy you as I should because of your sin, your failure to speak rightly concerning my servant Job. और तुम्हें जो मेरे दास अय्यूब के बारे में जो सही बात कहनी चाहिए थी तुम्हें नहीं कही, उस बात के लिए तुम्हें क्षमा मांगना है और इसलिए मैं तुम्हारे भेंट को अभी स्वीकार नहीं करूंगा। He says, speak rightly. और वो कहता है कि तुम्हें सही से वहाँ पे बातें करनी है। How do we know we are right when we make a judgment? How do you know we are right or wrong? और जब हम किसी के बारे में न्याय लगाते, न्याय करते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम सही हैं या गलत हैं? So better don't make it. और इसलिए इससे ये बेहतर होगा कि हम किसी के न्याय करें ही नहीं। Here these guys got a chance to go back to Job. God told them, go to Job. He will forgive you. I will forgive you. और फिर यहाँ पर उसके दोस्तों को एक मौका मिलता है कि परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम सबसे पहले जाकर मेरे दास अय्यूब से तुम माफी मांगो, वो क्षमा करने के बाद मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। But suppose we make a judgment on somebody and we don't get that chance. God is angry with us. We don't get a chance to ask forgiveness. That person will not forgive us. Imagine the anger of God against us. और फिर ये सोचो कि हमने किसी के ऊपर दोष लगाया है और फिर हमें ये मौका ही नहीं मिले कि हम जाकर उनसे माफी मांगे, और फिर सोचो कि वहां पर परमेश्वर का क्रोध कितना अधिक हम पर भड़केगा। In Job 33:14. और अय्यूब के 33 उसका 14वें वचन। For God speaks again and again in dreams
in visions of the night, when deep sleep falls on men as they lie on their bed. He opened their ears in times like that, gives them wisdom and instruction, causing them to change their minds and keeping them from pride, warning them of the penalties of sin, keep them from falling into some trap. और अय्यूब 33 इसके 15 से लेकर 17वें वचन तक 14 से लेकर पढ़ती हूँ। क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर नींद में पड़े रहता है, वह बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान को खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। So don't judge people whether they are good, don't judge whether they are bad, don't judge. और इसलिए यदि जो लोग हैं हमारे आसपास में, वो सही हो या गलत हो, अच्छे हो या बुरे हो, हमें उन पर दोष नहीं लगाना You है। judge the good, you say they are very good, but in the eyes of God, if they are bad, again you are in problem. और यदि हम किसी अच्छे लोगों के बारे में हम हम कहते हैं कि ये बहुत ही भला व्यक्ति है, लेकिन वही भला व्यक्ति यदि परमेश्वर की नजर में गलत है, तो वहाँ पर हम फिर से गलत हो गए। In 1 Corinthians 3:16. और पहला कुरिन्थियों उसका 3:16, Don't you realize that all of you together are the house of God, and the Spirit of God lives among you in His house? If anyone defiles and spoils God's home, God will destroy him, for God's home is holy and clean, and you are that home. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। So please, if what has happened before, it's okay. We ask the Lord forgiveness. We ask Jesus. He prays on our behalf. He asks the Lord to help us to overcome. He gives us the Holy Spirit. Everything is there. We have to pray if we are not overcome with this sin of judgmental people. In the book of Job, as it is given, please pray to the Lord to overcome this. और फिर बीते हुए दिनों में चाहे हमसे ये सारी गलतियां हो चुकी होगी, लेकिन अब से नहीं होना है। हो सकता है कि हमने ऐसे गलतियां किया हो, लेकिन परमेश्वर के पास लौट आना है और उससे हमें माफी मांगनी है और उस पर हमें जयवंत होना है। When we see Job's life, he had no much example ahead of him. और जब हम अय्यूब की जिंदगी को देखते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारे उदाहरण को सीखने मिलता है। And as such, he don't have any Old Testament or any such very good example ahead of him. और उसके पहले हमारे लिए पुराने नियम में और बेहतर ऐसे उदाहरण नहीं है। But he had fear of God. लेकिन अय्यूब के पास परमेश्वर का भय था। And that God himself was able to testify him that he had fear of God, and that kept him completely away from sin. और परमेश्वर खुद ने अय्यूब के बारे में गवाही दी थी कि ये एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानता है और सारी बुराइयों से परे है। And we are able to say after so many things that little bit pride he had actually. He was a righteous man. So why all the things that happened to him? When he was able to see everything, that little bit pride he had actually finally. और हम देखते हैं कि कितनी सारी बातें अय्यूब की जिंदगी में घड़ी, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी वो घमंड थी। तो वो एक धर्मी व्यक्ति था, फिर भी उसमें वो घमंड कैसे अंदर प्रवेश हुआ? And that little bit pride also when he saw the God. और वो छोटी सी जो भी घमंड थी वो परमेश्वर को जब उसने देखा। Job 42:5 and 6. और अय्यूब के 42:5 और 6 में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। So when he saw the God, he was completely able to see himself what the pride he had and everything. He was completely forsake and he repented and he was able to go to the dust and ashes. और फिर जब वो परमेश्वर को जब देखने लगा तब उसके अंदर की घमंड उसे नजर आई और फिर जब है वो सही रीति से जाकर पश्चाताप करके राख में बैठने लगा। So he is completely far ahead of us. और वो हमसे बहुत ही अधिक है, आगे है। We are having the complete Bible as such 66 books, the God, love letter God given to us. और हमारे पास वो पवित्र शास्त्र है, पूरे 67 किताब जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रेम पत्र है। But do you have the author of the Bible? Do you have the Holy Spirit to humble us and to make us humble? लेकिन इस पवित्र शास्त्र लिखने वाला लेखक क्या हमारे पास है? क्या हमारे पास पवित्र आत्मा है क्या जो हमें नम्र बनाता है? Yes, we are all undergoing the same situation, sir. और हम में से हर एक जो है हो सकता है ऐसे ही हालातों से गुजरते होंगे। So many temptations and all the way that day that we wake up until the day till we go to sleep, we are having so much problem. कितनी सारी समस्या है, कितने सारे हमें परीक्षाओं से गुजरना है, लुभाने वाले बातों से हम आकर्षित होते हैं।
So what can keep us from everything? लेकिन इन सारे बातों से हमें अलग और दूर क्या कौन सी चीज है, जो कौन सी बात है जो हमें दूर रख सकती है? The same verse, वही वचन Hebrews 12:2. और इब्रानी 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। So let's keep our eyes on God and Jesus. और इसलिए हमेशा हमारी नजर, हमारी आंखें जो है परमेश्वर के ऊपर और यीशु मसीह के ऊपर लगा रखें। Because He is loving us and He is asking us, if you love me, just follow everything. और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम सारी बातें छोड़कर मेरे पीछे हो जाओ। Before I leave, I would like to point out another verse. और मैं जाने से पहले एक और वचन बताना चाहता हूँ। When Satan was accusing Job, he was just asking, does Job fear God for nothing? और वहाँ पे जब शैतान जो है अय्यूब पर दोष लगाता है और परमेश्वर उसकी साइड लेता है, तो शैतान कहता है कि क्या कोई लाभ के लिए अय्यूब ऐसा आपसे भय नहीं मानता? I would like to encourage you all, even God doesn't do anything in this world, we must be able to be in a position to love God. और मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि इस संसार में भले ही हमारे लिए परमेश्वर चाहे हो सके कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर से प्रेम करते रहना है। Thank you, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। பேசிய வார்த்தைகள் அனுசரிக்கிறேன். தேவன் பேசிய வார்த்தைகள் அனுசரிக்கிறேன். मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने जो सारी बातें मुझसे की है। யோபுன் கேட்டவனே எனக்கு ஞாபகம் வரது, என்னை என்கரேஜ் பண்றது 2-3 விஷயங்கள். और अय्यूब के बारे में जब मैं देखता हूँ तो मुझे जैसे जितना याद आता है 2-3 बातें याद आती है। बस யோபு 1:1ல தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுறவனாய் இருந்தான். और अय्यूब के पहले अध्याय में जैसे लिखा है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और सारी बुराइयों से परे था। அடுத்து 5வது வசனத்துல அவன் தன் பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி வந்து ஒருவேளை அவன் பாவம் செய்திருந்தால், பெர்ஹாப்ஸ் ஒருவேளை பாவம் செஞ்சிருந்தா அவங்களுக்காக வேண்டி நான் பண்ணி அவங்களுக்காக வேண்டி பரிசுத்தம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்காக வேண்டி जॉब बन रहा। और अय्यूब के पहले अध्याय उसके 5वें वचन में हम देखते हैं कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए भी वो निवेदन करता है कि यही सोच के कि हो सकता है मेरे बच्चों ने भी जो सारी बातें की है या जो घटनाएं घड़ी है उनके साथ उन्होंने पाप किया होगा, इसके लिए उनके लिए वो विनती करता है। யோபு 31:1ல அவனுக்கு வயசு அவனுக்கு குமாரன் குமாரத்திகள் இருந்தாங்க, அவனுக்கு பெரிய குடும்பம் இருக்கு, அவன் வயது சென்றவனா இருந்தாலும் 31:1ல என் கண்களோட உடன்படிக்கை பண்ணின நான் ஒரு கன்னிகை மேல் நினைப்பாய் இருப்பதை படி। और अय्यूब 31:1 में हम देखते हैं कि वो जो बातें कहता है, वो अय्यूब का जो उम्र है उसकी बड़ी से एक परिवार थी, बड़े बड़े बच्चे थे, उसकी एक पत्नी थी, फिर भी 31:1 में वो ऐसा लिखता है कि मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर क्यों आंखें लगाकर देखूं। பழைய ஏற்பாடு மனுஷனா இருந்தான், நான் வந்து இப்போ புதிய ஏற்பாடு மனுஷனா இருக்கேன்। अय्यूब जो है पुराने नियम का व्यक्ति था, मैं जो हूँ अब नए करार में हूँ। அவன் பழைய ஏற்பாடு மனுஷனா இருந்தாலும் அவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஒரு லெவல்ல இருக்கு। और वो पुराने नियम का व्यक्ति होने के बावजूद भी उसकी जो मापदंड है एक स्थिर तक है। நான் புதிய ஏற்பாட்டுல இருக்கும்போது நான் இன்னும் அதிகமான ஸ்டாண்டர்டுக்கு போகணுமே, இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு முன்மாதிரியா இருக்காரு, நான் இன்னும் அதோட அதிகமா போகணும், ஆனா என்னோட தரம் வந்து இப்ப எப்படி வெக்கத்துக்குரியதா தான் இருக்கு, நான் பழைய ஏற்பாட்டு தரத்தை விட கீழே இருக்கேன்। और मैं नए करार में होने जहाँ पर हूँ, यहाँ पर मेरे लिए मापदंड मसीह यीशु के स्तर तक मुझे आना है, लेकिन मैं नए करार में होने के बावजूद भी मैं तो पुराने नियम में लोगों से भी कई बदतर हूँ। பழைய ஏற்பாட்டு காலங்கள் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இரக்கம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு, ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல இயேசு கிறிஸ்து மூலமா நமக்கு வந்து கிருபையும் இருக்கு। அப்படி கிருபை இருந்துமே பாத்தீங்கன்னா என்னால ஏன் வர முடியலன்னா அது வெக்கத்துக்குரிய காரணமா இருக்கு, நான் வந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் எனக்கு சுத்தமா இல்லைங்கிறது தான் அர்த்தம்। और पुराने नियम में जो सारे लोग थे उनके लिए करुणा उपलब्ध था, लेकिन यहाँ पर नए नियम में तो हमारे लिए अनुग्रह की भी उपलब्धि है, और अनुग्रह होने के बावजूद भी जो है मैं मसीह के मापदंड तक पहुँच नहीं पाया हूँ, और ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। யாக்கோபு 5:14 और याकूब 5:14 में 5:11 में இதோ பொறுமையா இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே, யோபுவின் பொறுமை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள், கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள், கர்த்தர் மிகுந்த இரக்கம் உருக்கமும் உள்ளவராயிருக்கிறார்।
याकूब 5:11 देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। யோபுவோட வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது இன்னும் இவ்வளவு ஆண்டவர் பண்ணியும் அவனுக்கு வந்து இப்படி முறுமுறுக்கிறான் இப்படி சொல்றானான்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு இப்படி எக்ஸாம்பிள் இருந்தும் நான் என்னோட விஷயத்துல வந்து நான் வந்து இப்படி முறுமுறுக்கிறவனா இருக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கடந்த நாட்கள் அதிகமா வெட்கப்பட்டிருக்கேன்। और अय्यूब के जीवन को देखकर उसके जीवन में कितनी सारी बातें घड़ी है, फिर भी उसने परमेश्वर की ओर कभी मूर्खता से दोष नहीं लगाया। लेकिन मेरे जीवन में जब कोई भी छोटी से छोटी बातें होती है मैं दोष लगाता हूँ, कुड़कुड़ाता हूँ, शिकायत करता हूँ और जब मैं अपने आप को अय्यूब के साथ तुलना करता हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। கடந்த நாட்களில் நான் வேலைக்கு வேண்டி என்னோட படிப்பு முடிச்சு வேலைக்கு வேண்டி நான் 2-3 மாசம் அலைஞ்சேன், எனக்கு எந்த வேலையுமே எனக்கு கிடைக்கல। और बीते हुए दिनों में मेरे पढ़ाई होने के बाद मैं काम की तलाश में जब था तो 2-3 महीने लगातार काम की तलाश करते हुए मुझे, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं मिला। அந்த நேரத்துலலாம் ஆண்டவரே எனக்கு இவ்வளவு எக்ஸாம்பிள் இருந்தும் நான் கொஞ்சம் கூட நன்றி செலுத்தல, நான் முறுமுறுக்கனா இருந்தேன், நான் இப்படி இருந்தனால இருக்கிறேன்னு சொல்லி முறுமுறுக்கனா இருந்தேன்। ஆனா கடைசியில ஆண்டவர் என்னை வெட்கப்படுத்தவே இல்லை, எனக்கு வந்து சமாதானத்தோட உள்ள வந்து ஜாப் எனக்கு கொடுத்திருக்காரு। और मैंने जब अपने आप को वहां पर तब परखा अय्यूब की तुलना में और मैंने देखा कि मैं तो कितना कुड़कुड़ाता हूँ, मैं कितना शिकायत करता हूँ और मौका देने पर भी इतने अच्छे से सुनहरा मौका दिया जहाँ पर मैं उस हालात में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी अत्यंत दया और करुणा से मुझे वहां पर एक नौकरी दे दी। யோபு வந்து இப்படிலாம் இருந்து நீதிமான் இருந்ததுனால அவனுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்னன்னா எசேக்கியேல் 14:14 அப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்றாரு, நோவா தானியேல் யோபு ஆகிய 3 புருஷரும் அது நடுவே இருந்தாலும் அவர்கள் நீதி நிமித்தமால் தங்கள் ஆத்மாவை தப்பிப்பார்கள்। அந்த ரைச்சஸ் மேன் சொல்லிட்டு ஆண்டவரால வந்து பெயர் சொல்லப்படுற 3 நபர்ல யோபும் ஒருத்தவரா இருக்காரு। और वहाँ पर हम इज़ेकियेल 14:14 में जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उन धार्मिक व्यक्तियों के बारे में बताता है, वहाँ पर उसमें 3रे अंक में अय्यूब का भी जिक्र किया गया है। வருங்காலையும் நான் அந்த பழைய ஏற்பாடு தரத்தை முதல்ல நான் அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் கிருபையை பெற்று நான் இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவருக்குள்ள வளர ஆண்டவர் உதவி செய்வார் நம்பிக்கை அறிக்கை செய்யறேன்। और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से पुराने नियम के लोगों ने परमेश्वर में विश्वास करते हुए जीवन व्यतीत किया, उससे बढ़कर मैं अभी मसीह पर विश्वास कर इस दौड़ को दौड़ूं और इस मेरे लिए जो काम सौंपा है सब पूरा करूं, इसे विश्वास करता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। When I read this book of Job, first chapter and second chapter, और जब मैंने अय्यूब के पहले और दूसरे अध्याय में से पढ़ा, so I went through one more chapter in the Bible in the New Testament, Mark 5th chapter. और उसी के साथ जुड़े हुए मार्कुस के 5वें अध्याय में भी मैंने एक वचन पढ़ा From verse 21 onwards. और मरकुस 5 उसके 21वें वचन से लेकर The case is very similar to Job. और मरकुस 5 में भी जो बताया गया है वो अय्यूब के समान एक कहानी या घटना घटी थी। Let us read Job first chapter verse 21 onwards, 20 onwards. Then we will go back to Mark. अय्यूब पहला अध्याय 20 में से हम पढ़ेंगे। Anybody can read? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। And Job 1:20. Job 1:20. We'll read Job 2. और अय्यूब दूसरा अध्याय verse 9 and 10. उसका 9 और 10। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। So the point to be noted here is in Job 2nd chapter 10th verse, in all this Job did not sin with his lips. और यहाँ पर विशेष एक बात हमें ध्यान देने लायक है कि इन सारे बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। Okay, we will read Mark 5th chapter. अब हम मरकुस के 5वें अध्याय में मुड़ेंगे। Verse 22. मरकुस 5 का 22।
और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित हो जाए। Okay. Now we'll see Job's case. Job's case was he lost everything already. और अय्यूब को जब हम देखते हैं तो वो सब कुछ खो चुका था। No hopes further. अब उसके लिए आगे कोई आशा नहीं है, ऐसा था। But in the case of Jairus in Mark, लेकिन मरकुस अध्याय में याईर के सिचुएशन में he had some hope वहाँ पर उसके लिए एक आशा regarding थी his daughter that she can be saved. कि उसकी बेटी जो मर चुकी है She अब was भी about to die. वो मरने वाली है, तो अभी वो बचाई जा सकती थी। So in both cases, the Bible teaches us, इन दोनों भी हालातों में पवित्र शास्त्र हमें ये सिखाता है being a Christian, only good things should happen in our life. It's not necessary. कि एक मसीह होने की वजह से हमारे जीवन में हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही होगी, ऐसा नहीं है। Good things will happen, even the worst things will happen. अच्छी बातें होंगी लेकिन सबसे बदतर बातें भी हो सकती But हैं। how you are supposed to react to that? लेकिन हमारे उन हालातों के विषय में प्रतिक्रिया क्या है वो मायने रखता है। In both the cases, the reaction should be the same. दोनों भी सिचुएशंस में हमारी जो प्रतिक्रिया है वो समानता से होनी In चाहिए। Job's case, it says, Bible says that he fell and worshipped the Lord. और अय्यूब के हालात में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर दंडवत किया और परमेश्वर की आराधना की। In Mark's and Jairus' case, he also said the same thing. He saw him, he saw Jesus and fell on his feet and begged. और मरकुस के अध्याय में याईर के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उसने यीशु को देखा वहाँ पर वो नीचे गिरकर यीशु से विनती करने लगता है। So we Christians, not only Christians, every religion, when they say like God, when they talk in faith. They ask everything in faith. Not only Christians have faith, but all the religions have faith. और सिर्फ मसीह ही नहीं, लेकिन सारे जो धर्म के लोग हैं वो विश्वास के साथ ही प्रार्थना करते हैं। But the speciality in Christianity is, लेकिन मसीह लोगों में खास बात ये है, after praying, प्रार्थना करने के बाद you are supposed to keep your mouth shut. हमें हमारे मुंह को बंद रखना है। That is the act of faith. और वो विश्वास की एक क्रिया है। In my personal life, मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में I realize it's very easy to pray a prayer of faith. और मैंने महसूस किया कि विश्वास की उस प्रार्थना को करने में तो बहुत आसानी होती है, But after you pray the prayer of faith, लेकिन उस विश्वास की प्रार्थना को करने के बाद you should believe. अब तुम्हें विश्वास करना है। In Jairus' case, जिस तरह याईर के केस में, so Jesus went with him immediately. और झट से हम देखते हैं कि यीशु में से याईर के साथ अंदर कक्ष में चला गया। The faith should be, as soon as you pray, you should believe that God is in action immediately. और वो विश्वास ये है कि हमारे प्रार्थना खत्म होने के बाद विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया है। God is not a magician. हमारा परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है। God is a God who does miracles. हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। So magic happens immediately. और जादू जो है झट से हो जाता है। Miracles takes time. लेकिन परमेश्वर की चमत्कार जो है अपने ही समय में वो पूरा होता है। It's God's time. वो परमेश्वर के समय में पूरा होता So है। that's where God tests your faith. और वहीं पर जो है परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। When you pray the prayer of faith, जब आप विश्वास की प्रार्थना को करते हो, situation becomes more worse. तो हो सकता है वहाँ पे जो हालात है वो और खराब और बदतर हो जाए। Not by any worldly people, कोई संसार के लोगों की वजह से नहीं, people around you. लेकिन हमारे आसपास के लोगों की वजह In the से। case of Job, we read अय्यूब के परिस्थिति में हमने देखा what was the reaction of his wife. उसकी उस हालत में उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया क्या थी। And in the case of Jairus, और याईर के कहानी में we see, we can read in verse 35. हम 35वें वचन में पढ़ सकते हैं। While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue's house, who said, "Your daughter is already dead." और हम मरकुस 5 के 35 में जैसे लिखा है कि वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घरों से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। Your daughter is already dead. Why are you disturbing the teacher now? फिर वो कहता है कि वहाँ पे तुम्हारी बेटी तो मर चुकी है, अभी क्यों जाके उसे सता रहा है। So in both the cases, in Job's cases as well as in Jairus' cases, it was his own people around him who were testing his faith. God allowed those people and he tested his faith. और अय्यूब के किस्से में भी और याईर के किस्से में भी हम
हम देखते हैं कि आसपास के लोग जो हैं वो ही जो है उन्हें कोसते हैं या उनके प्रोत्साहन को कम करते हैं, और परमेश्वर इस बात को होने के लिए अनुमति भी देता है। In Job's case, the Bible says he didn't sin with his lips. और अय्यूब के किस्से में पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने अपने मुंह से परमेश्वर को कभी दोष नहीं It's लगाया। very important to control our tongue at that moment. और उस हालत में बहुत जरूरी है कि अपने जुबान को हम काबू में रखें। Because in some verse in the Old Testament it says, among the multitude of words there comes a sin. क्योंकि ऐसे जो है पुराने नियम में एक वचन में ऐसा लिखा कि बहुत सारी बातों के बीच में पाप जो है उत्पन्न होता है। So most of the time you can see the talkative people, और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत जो ऐसे लोग जो बहुत अधिक बोलते हैं, they speak many wrong things. बहुत सारे unknowingly. उनके अनजाने में ही बहुत सारी बातें वो बोल लेते हैं। So we need to remember one thing when you pray the prayer of faith. और इसलिए हमें एक बात को याद रखना है कि जब उस विश्वास की प्रार्थना को करते हैं, Control your tongue. अपने जुबान को हमें काबू में रखना है। So in the case of Jairus, when as people had come and told him that your daughter is already dead, why are you disturbing the teacher now? Leave him. और याईर के किस्से में हम देखते हैं कि किस तरह से उसके लोगों ने आकर उससे कहा कि तुम्हारी बेटी तो अब मर चुकी है, अब जाकर तू यीशु को क्यों तंग कर रहा है, उसे छोड़ दे। Bible also says that we all have been given a measure of faith. और पवित्र शास्त्र में ऐसे भी लिखा है कि हर एक व्यक्ति को उस हिसाब से विश्वास का एक परिमाण दिया है। So it's God's duty it's God's business to take care of your faith, like the measure of faith which you have in you. और इसलिए जो विश्वास का परिमाण हमें से हर एक व्यक्ति को दिया गया है, वो परमेश्वर खुद उस विश्वास को संभालता He है। will not test you more than your capacity. और तो हमारे सहने के अधिक परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेगा। So even though his people had come and told Jairus that your daughter is dead, और he didn't react to it. और वहाँ पर वो लोग जो आकर याईर से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो मर चुकी है, तो उस बात को सुनने के बाद भी याईर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। So that's where when God sees your reaction, you are still standing in faith, He will give you a word of encouragement. और फिर वहाँ पर जब परमेश्वर देखता है कि जो भी कुछ आसपास में घटता है उसके बावजूद भी तुम विश्वास में खड़े हो, तो फिर वहाँ पर परमेश्वर तुम्हारे लिए एक प्रोत्साहन और आश्वासन का एक वचन देता है। So Christ gave him a word of encouragement in verse 36. Do not be afraid, only believe. और फिर वहाँ पर 36वें वचन में परमेश्वर ने मसीह ने उसे एक आश्वासन दिया कि तुम डरो मत, केवल विश्वास रखो। And one thing remember, after the prayer of faith is done, towards the miracle is going to happen. In between, God is always with you. He gives every moment. He gives a word of encouragement to you. और इसलिए उस विश्वास की प्रार्थना करने के बाद और वो चमत्कार होने की घड़ी तक बीच में का जो समय है, परमेश्वर हर एक पल वो हमारे साथ में है और वो लगातार उसके वचनों के जरिए से हमसे बातें करता है। So in case of Jairus, the miracle happened in verse 42. और इसलिए यहाँ पर याईर के किस्से में हम देखते हैं कि 42वें वचन में वहाँ पर चमत्कार होता है। So it is a miracle, the faith which he had on God for his daughter, it was accomplished in verse 42. और इसलिए जो विश्वास पर वो आगे से शुरुआत से खड़ा था, उस विश्वास में परमेश्वर ने 42वें अध्याय में उस चमत्कार को पूरा किया जहाँ पर उसकी बेटी फिर से जी उठी। In the case of Job, और अय्यूब के किस्से में his peace was restored in the chapter 42. और 42वें वचन में उसकी जो बात करने की क्षमता फिर से लौट आई। This is what I wanted to say. और इसी बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ। अय्यूब का जीवन से मुझे ये सीखने के लिए मिला। When I look into the life of Job, this is what I got to learn. Chapter 1, chapter 2 में In the first and the second chapters, जब उसका सारा संपत्ति, उसका धन दौलत, उसके बच्चे सब चले गए, when he lost all his wealth, when he lost all that he had along with his children, उसका जो रिस्पॉन्स था मुझे बहुत अच्छा लगा। the way he reacted to it, the response that he gave is what something I really liked it. मुझे अच्छा लगा कि जब उसका रिस्पॉन्स था कि उस रिस्पॉन्स देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो सच्ची पे उसको जो कुछ धन था, उसके बच्चे थे, उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर को उससे बड़े प्यार करता था। And then when I saw that despite everything that he had, he lost it, but still he was able to love God. He was able to do so because he did not have his heart set on the things that he had with him. जिस गांव में या जिस देश में रहता था वो काफी अमीर था। And in the place, in the region that he was, Job was the richest man. और
देखते कि उसे सारा संपत्ति चला गया लेकिन एक सिंगल में उसे डिस्टर्ब नहीं हुआ. And we see that he lost all his wealth, but there was not a single moment that he got disturbed. पैसे से प्यार करना टोटली फ्री था He was free from the love of money, और जो भी इसके बच्चे थे उससे भी फ्री था and he was free from the love of all his children that he had, और इवन वो खुद से भी प्रेम नहीं करता था. and he was not in love with his own self. बट एक चीज मुझे देखने की मिला कि परमेश्वर को अपने खुद के लाइफ में सुप्रीम रखा था. And I got to learn one thing about Job, that he always kept God as his supreme priority. मैं कुछ सोच रहा था कि मेरे लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो And I was thinking about myself that if something similar like this were to happen in my life, मैं कितने बार मैं देखा कि प्रीवियस लाइफ में भी कितने बार गिर चुका हूँ. and I have seen that in so many instances I have fallen down, कितने बार डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि कुछ चीज लॉस होने के बाद. and many times when I have lost things, I have always got disturbed. और मैं कितना कमजोर हूँ. I am so weak, O Lord. और मुझे ये जो जब अय्यूब जैसा बना God, you please make me like Job. और हम कितने बार सोचो मैं इस तरह सोच रहा था कि मैं अकाउंट में अगर कुछ पैसा अगर अचानक जैसे हैक होते हैं मनी ट्रांसफर हो जाते हैं समझो कि तुमने काफ़ी मेहनत करके पैसे जमा करके रखा है. And think of it that you have in your bank savings account, you have a lot of money, and someone has hacked it, and the entire money is gone in a moment's time. तुम्हारा रिस्पॉन्स किस तरह रहेगा. Then what will your reaction be? मेरा किस तरह रहेगा. How will I react to that situation? और भी दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं. And there are many such similar instances that we can see. और मुझे प्लीज अय्यूब के जैसे बना कि मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूँ. God, please make me like Job so that I will never get disturbed no matter what happens. और मैं कभी भी हुआ करता कभी And I pray, Lord, परमेश्वर तेरा जॉय तेरा पीस मुझसे कभी मत देना. that God, your joy and your peace should never go away from me. क्योंकि जॉय ये पीस मेरे लिए बहुत स्ट्रेंथ है हमेशा. Because the joy of the Lord and the peace that He gives is a very strong point for me. बाकी कुछ भी नहीं मेरे से. And you may take away anything else that you want. और इस तरह मेरे लाइफ में हमको प्रायोरिटी रखना है. And this is how we have to prioritize things in our जिस तरह lives. रेवलेशन देखते कि इफिसियंस चर्च को And as we see in the book of Revelation, that the word that was given to the church of कि उसका Ephesus, पहला प्रेम जो निकल गया था काफी सारा अच्छा काम था चर्च के अंदर. and the church of Ephesus had many good things to boast about, but when they lost the love, first love, बट हमारा जो पहला जैसे प्रेम है जो पैशन है वो निकल गया था. but many times we see that the first love and the passion that we had at the start, many times we lose that. और मैं खुद अपने जीवन में देखा. And I have seen this happening in my own life. और इवन हम कितना अच्छा प्रचार करें कितना अच्छा मीटिंग में आए कुछ काम का नहीं है. And if all these things happen, no matter how well we preach or how very nicely we may come to the meetings, बट एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को हमेशा सुप्रीम प्रायोरिटी रखो. but I want to tell you one thing, that it is so important to keep God as the first priority in our life. So as brother Vijay said, we should keep the God as first priority in our life. जैसे ब्रदर विजय ने भी बोला कि हमें प्रभु यीशु को हमेशा पहला स्थान देना है हमारे जीवन में. Job had kept God as first priority in his life. जोब ने अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दिया था. He hated sin. पाप से नफरत करता था. He kept away from bad company. गलत संगत से दूर रहता था. And when we read the book of Job, he said, what a fine man he was. और जब लोग जोब की पुस्तक में पढ़ते तो हम लोग देखते कि प्रभु बोलते कि कितना अच्छा व्यक्ति है. That God had to tell the devil, see, such a good man. He fears me such a lot. प्रभु स्वयं शैतान को बोलते कि कितना अच्छा व्यक्ति है, मेरा कितना अच्छा भय रखता है अपने मन में. When God looks at us, we are God's children. जब प्रभु हमें देखता है क्योंकि हम लोग उसके बच्चे हैं. And God will tell, this is my child. और प्रभु भी बोलेगा कि हाँ ये मेरा बच्चा है. The devil will tell God, शैतान उस समय प्रभु को बोलेगा, ah, God, you have protected him, put angels all around him, given such good fellowship, everything. Now remove all that and let's see what will happen. हाँ प्रभु आपने उसकी रक्षा के लिए इतने सारे फरिश्ते दिए हैं, इतना अच्छे कलेशा में डाला है, ये सब निकाल के देखो, फिर देखते हो कैसा बर्ताव करता है. And then God allows, God doesn't harass us and God doesn't put sickness on us. तो प्रभु कभी भी हमें खुद से परेशान नहीं करता या कोई बीमारी हम पे नहीं डालता. God allows the devil to harass us. लेकिन प्रभु अनुमति देता है कि शैतान आके हमें परेशान करे. He has to test us. क्योंकि वो हमें जांचना चाहता है. He has to test us that we are faithful to God. और वो देखना चाहते हैं कि क्या हम लोग उसकी ओर विश्वास रखेंगे कि नहीं. And Job was faithful to God. और जोब ने विश्वास रखा. He worshipped God. उसने प्रभु की आराधना की. Thank God for the प्रभु को difficulties. धन्यवाद दिया हर एक मुश्किल के He लिए. said, God has given me everything. Now God has taken away. I've got nothing to complain. उसने बोला प्रभु ने हर एक चीज दिया है, अभी उसने ले लिया है तो मैं बिल्कुल कुड़कुड़ नहीं करूंगा. He passed the test so well. और उसने एकदम अच्छे तरीके से वो परीक्षा में सफल रहा. Then he became sick.
और फिर वो बीमार पड़ गया। He got boils in every part of the body. हर पूरे शरीर में उसको फोड़ी हो गए थे। You can just imagine what a miserable condition that is. हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि कितना बुरा हालत होगा उसका। But even then, he did not forsake God. लेकिन उसमें भी उसने प्रभु को दुत्कारा नहीं। His 3 godly friends, brothers, who really loved the Lord, they came to encourage him. उसके जो 3 दोस्त थे, प्रचारक दोस्त थे, वो लोग प्रभु से प्रेम करते थे और वो लोग आए उसको प्रोत्साहन देने के लिए। But then ultimately they landed in fault finding. लेकिन प्रोत्साहन देने के बजाय वो उसमें गलतियां निकालने लगे। They said, some sin you must have definitely have done. वो लोग बोलने लगे नहीं, कोई ना कोई पाप में तो तुम जरूर पड़े रहोगे। And there Job also began to complain. और वहाँ पे फिर जोब भी गुड़गुड़ करने लग गया। He said, I am such a good man. We read about the testimony of Job. उसने बोला कि मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, जैसे हम लोग उसकी गवाही में पढ़ते हैं। I've never lusted after any woman. मैंने कोई भी स्त्री की और गलत नजरों से नहीं देखा है। I've helped out the orphans. मैंने हमेशा अनाथों की मदद की है। I've done so much good to everybody. हर एक व्यक्ति की ओर मैंने हमेशा अच्छा ही किया है। I don't know why all these problems that come to me. मैं जानता नहीं हूँ कि ये सारी मुश्किलें मेरे साथ ही क्यों, मेरे पास ही क्यों आए। I wish I had died. मैं सोचता हूँ कि मैं मर जाऊँ। See, many of the trials that come across our life कई बार जो परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, come as surprise tests. वो एक अचानक से आ जाती है। We may all be sitting quite comfortable here, हम लोग यहाँ पे एकदम आराम से बैठे रहेंगे, but tomorrow we don't know what problems and what trials will come. लेकिन हम जानते हैं कि कल क्या मुश्किल आने वाला है। In our office, हमारे ऑफिस में, in our homes, घर में, any other place. कहीं पर भी। But God is allowing that. लेकिन प्रभु उसको अनुमति दे रहा है। Why is God allowing that? क्यों प्रभु अनुमति देता है? Not only to tell Satan that this is my child, सिर्फ शैतान को बोलने के लिए नहीं कि ये मेरा बच्चा है, but to make us better, लेकिन हमें और बेहतर करने के लिए, but to make us godly. हमें और धार्मिक बनाने के See, लिए। the end of Job was tremendously good than the beginning. अंत में जोब के साथ जो हुआ वो बहुत ही अच्छा और बेहतर था कि वो जो पहले स्थिति में था। That is only because of these trials that the devil has brought. और वो इसी की वजह से हुआ क्योंकि शैतान उसके ऊपर अनेक बुरे परिस्थिति लाया। It says towards the end he became so good. इसमें लिखा है कि अंत में वो एकदम अच्छा हो गया। In the beginning he was thinking of himself as something good. शुरुआत में हमेशा खुद के बारे में सोचता रहता था कि हाँ मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ। Then what he said later on, फिर बाद में क्या बोला? he said, now I have heard you Lord and now I put my hand to my mouth. कि प्रभु मैं अब तुझसे सुन चुका हूँ और मैं अभी अपना हाथ मेरे मुंह पे रखता हूँ। I am not going to say anything good about me. मैं अभी खुद के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलने वाला। I am not going to say think any good thing about me. मैं अपने बारे में कुछ अच्छा सोचने भी नहीं वाला हूँ। Lord, you have been so good. प्रभु तू मेरे और कितना अच्छा रहा है। Lord, I'll repent and I'll repent. प्रभु मैं पछताव करता हूँ। Ultimately, Job also had to repent. आखिर में जोब को ही पछताव करना पड़ा। See, God wants each one of us to repent. प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति पछताव करे। We have a lot of things to repent in our क्योंकि हर एक life. व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो पछताव कर सकता है। We think we're very good. हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। There is a small rhyme, nursery rhyme. It says, like little Jack Horner sat in a corner एक छोटा सा गीत है अंग्रेजी में कि एक छोटा लड़का एक कोने में बैठा था and he was eating something. He pulled out a plum and something like that. I can't remember. Then he said, "What a good boy am I." और वो अंत में बोलते हैं कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। We all say, "What a good sister am I? What a good brother am I?" हम लोग भी बोलते हैं कि मैं कितना अच्छा भाई हूँ, कितनी अच्छी बहन हूँ। God says, "I know you are very good, but there are a lot of badness also lying in you." तो प्रभु बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुरी चीजें अब भी हैं। And through these trials, all come to the surface. और ये सारी मुश्किलों से मैं उसे बाहर लेके आऊंगा। Especially the grumbling and the complaining. खासकर कुड़कुड़ करने वाली आदत। We don't like this. We don't like that. मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। Instead of thanking and praising God, grumbling and murmuring starts. प्रभु को धन्यवाद देने के बजाय हम लोग कुड़कुड़ करने लगते हैं। The first thing God tells us, we see God speaking to us, we say, Lord, I thank you, I keep my mouth shut. तो सबसे पहले जब हम लोग प्रभु को सुनने लगते हैं तब लोग बोलते हैं कि प्रभु अभी से मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। I am not going to justify myself. मैं खुद की सफाई नहीं दूंगा। All these three friends of his began to tell his faults. उसके जितने भी 3 दोस्त थे उसमें कमियां निकाल रहे थे। But God, when God speaks, you know how God speaks, you must read that verse from 37 to 39. तो वहाँ पे हम लोग 37 से 39 में पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रभु दूसरे लोगों को सुधारता है। God said, have you seen the clouds and the constellations? तो प्रभु ने बोला कि क्या तुमने आकाश की ओर देखा है और सितारों की ओर देखा है? Have you seen the hippopotamus? Have you seen the alligator? क्या तुमने मगरमच्छ या गेंडे को देखा है? Have you seen the ostrich? क्या तुमने वो ऑस्ट्रिच को देखा है? See how can you do all? Can you see? Have you seen the sun? क्या तुमने सूरज को देखा है? God speaks like that to us. उस तरीके से प्रभु हमसे बात करता है। Once he heard God speaking, he said, my mouth is shut. एक बार उसने प्रभु को सुना, उसके बाद उसने बोला कि मेरा मुंह बंद हो गया है। Once you go to God, your mouth will be shut. एक बार तुम प्रभु के पास जाओगे, उसके बाद तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। You not say, I'm such a good believer, I've done so much of work for the Lord, I've done this and that. तुम ये नहीं बोलोगे कि मैं एकदम अच्छा विश्वासी हूँ, मैंने प्रभु के लिए ये किया है, वो किया है।
I say, I don't deserve anything, Lord. तुम बोलोगे कि प्रभु मैं कोई भी चीज के लायक नहीं हूँ। And that is an exercise that God takes with us, each one of us. और ये कार्य है जो प्रभु हर एक के जीवन में करता है। And after the end of it, we see in James chapter 5 that God is compassionate and very merciful. और उसके अंत में जैसे याकूब में हम लोग ने पढ़ा, हम लोग बोलेंगे कि प्रभु दया से भरा है। See, we all like to live a very comfortable life in this world. हर एक व्यक्ति को आराम का जीवन चाहिए इस दुनिया में। God knows if we live a very comfortable life, we will not progress in the Lord. लेकिन प्रभु जानता है कि हम लोग ये आराम वाला जीवन अगर जिएंगे तो हम लोग प्रगति नहीं करेंगे हमारे मसीह जीवन में। But God gives us trials according to ability to bear. तो हमारी क्षमता के हिसाब से प्रभु हमें परेशानियां हमारे जीवन में भेजता है। And through that we see the power of God and the goodness of God work in our own life. और उसके द्वारा हम लोग प्रभु की शक्ति और अच्छाई को हमारे जीवन में कार्य करते हुए देख सकते हैं। See, it's not, we cannot become spiritual by reading the Bible or praying, सिर्फ बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना करने से हम लोग आत्मिक नहीं बनते, or listening to a message, or even sharing the word of God doing ministry. या प्रचार करने से या सेवा करने से भी नहीं बनते। Most of our growth takes place in the different trials and problems of life. लेकिन अधिकतर जो भी हमारी प्रगति होती है वो जो जिंदगी की परेशानियां होती है उनमें से होती है। That's why the apostle James said, "Consider it all joy, my brothers, when you fall into different types of trials." इसलिए याकूब ने बोला है कि हमेशा ये आनंद की बात सोचो कि जब तुम अनेक परिस्थितियों और परेशानियों में पड़ते हो। Why should we be happy when we fall into different types of problems? तो क्यों जब हम लोग अनेक मुश्किल परिस्थितियों में पड़ते हैं क्यों हमें खुश रहना है? Because we learn patience. क्योंकि वहाँ पे हम लोग धीरज रखना सीखते हैं। The first part of love is patient. प्रेम का सबसे पहला और या आरंभ की बात धीरज रखना We होता got है। very little patience. और हम सभी में बहुत ही कम धीरज रखने की आदत है। That's why God gives small children to young married people. इसलिए प्रभु हमेशा एकदम जो नए जो शादीशुदा लोग रहते हैं उनको बच्चे देते हैं To teach them patience. ताकि उनके द्वारा वो उनको धीरज रखना सिखा सके। People behave in very odd ways और कई बार लोग हमसे बहुत ही अलग-अलग तरीके से पेश आते हैं to teach us patience. ताकि हम लोग धीरज रखना सीख सके। Only the problems and trials in life will teach us सिर्फ patience. परेशानी के द्वारा ही हम लोग धीरज रखना सीख सकते हैं। That is valuable in the eyes of God. और प्रभु के नजर में ये कीमती है। God is not interested in how many messages I have preached प्रभु ये चीज में दिलचस्पी नहीं रखता कि मैं कितना अच्छे से प्रचार करता and हूँ how well I have sung in the या church, कितने अच्छे से गाता हूँ, but how much of character of God I have. लेकिन क्या कितना प्रभु का चरित्र मेरे अंदर है। And the character of God comes only through trials और and प्रभु का problems. चरित्र सिर्फ परेशानी के द्वारा ही हमारे जीवन में आता है। That's why we have to thank God for all the problems that come across in our life. इसलिए हमारे जीवन की हर एक परेशानी के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। That's why James says different types of trials. इसलिए याकूब बोलते हैं कि अनेक तरीके के मुश्किल परिस्थितियां, Trials in our workplace, काम में मुश्किलें, trials in our home, घर में मुश्किलें, trials in the office, दफ्तर में मुश्किलें and trials in sickness trials. और बीमारियों वाली मुश्किलें, All things are working for your good. ये सारी चीज हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। The apostle Paul said it there that in the 2 Corinthians chapter 12, दूसरे कोरिन्थियों चैप्टर 12 में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12 verse 7 to 10. वाक्य 7 से 10। I'll read it out. He says, "Because I had such a lot of great revelations, और क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा ज्ञान आ रहा था, God sent me a thorn in the flesh, a messenger of devil to really buffet me, प्रभु ने मेरे शरीर में एक कांटा भेजा ताकि मैं उससे दबा रहूं, to keep me from exalting myself." ताकि मैं खुद को ऊंचा ना उठाऊं। See, by nature, all of us have a nature to exalt ourselves, स्वभाव ही हम लोग ऐसे लोग होते हैं कि हम लोग हमेशा खुद को ऊंचा उठाते रहते हैं। to think that we are very good, हम लोग सोचते रहते हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, that we are very smart, हम लोग बहुत ही शाने हैं, we are very clever, हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं, very good in the church, कलीसिया में बहुत अच्छे हैं, and a lot of people also praise us like anything. और हमारे आजू बाजू के लोग भी हमें चढ़ाते रहते हैं। But you know, we keep on thinking high about ourselves, we become like the devil. और हम लोग अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो हम लोग भी शैतान जैसे बन जाएंगे, We become proud, हम लोग घमंडी बन जाएंगे। and we become proud. What happens? और जब हम लोग घमंडी होते हैं तो क्या होता है? God hates proud people. प्रभु घमंडी लोगों से नफरत करता He है, has to resist us. फिर उसको हमारा विरोध करना पड़ता The है। devil is resisting us, and God also resisting तो us. शैतान हमारा विरोध तो कर ही रहा है, फिर प्रभु भी हमारा विरोध करने But लगता है। God loves us so much. लेकिन प्रभु हमसे बहुत ही प्रेम करता He है, wants to keep us humble. वो चाहता है कि हम लोग नम्र रहें। The only way to keep us humble is to give us a lot of problems. और हमें नम्र रखने का एक तरीका ये है कि हमें वो परेशानी के द्वारा लेके जाए। The apostle Paul went to heaven and came back. अपोस्टल पौलुस स्वर्ग में जाके वापस आया था। Have you seen a person who went to heaven and came back? क्या तुम कोई व्यक्ति को जानते हो जो स्वर्ग में जाके आया है? Oh, he must have thought, see, all the other 12 apostles never went to heaven. I was the one who came last, went to heaven and came back. तो उस समय वो सोचता रहेगा कि बाकी जो भी 12 प्रभु के अपोस्टल थे वो लोग कभी स्वर्ग में जाके नहीं आए, लेकिन मैं आखिर में आया, लेकिन फिर भी मैं जाके आ गया। And the great danger was that he would really think very high about himself. और वहाँ पे खतरा था कि अपोस्टल पौलुस खुद के बारे में बहुत ही बड़ी-बड़ी चीजें सोचने लगता। And then he said, God gave him a messenger of Satan, a thorn in the flesh. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फिर प्रभु ने उसको उसके शरीर में काटा दिया। Nobody knows what it was, a thorn in the flesh, a messenger of devil. तो ये शरीर में जो काटा था ये क्या था कोई जानता नहीं है, लेकिन वो शैतान से आया था। It could be have some sickness or some disability. हो सकता है कि कोई तरीके की कमी या बीमारी हो। We think that because in Galatians it says, he said, my speech to you was not good. जैसे गलातियों की पुस्तक में लिखा है, अपोस्टल पौलुस बोलता है कि जो मेरी बोलने की क्षमता है वो इतनी अच्छी नहीं थी। Some people said it may be a stammering which he got.
कुछ लोग बोलते रहेंगे कि शायद से वो उसके पास वो हकलाता होगा। Suppose I will stand here, keep on stammering at every sentence. तो सोचो अगर मैं यहाँ पे खड़े रह के हर एक वाक्य में हकलाता रहूंगा। Paul was such a good preacher, अपोस्तल पौलुस बहुत ही बढ़िया प्रचारक था, but people had to bear with all his stammering. लेकिन फिर भी लोगों को सहना पड़ता था उसको You उसकी know, हकलाने की आदत से। when a person stammers, how awkward that person feels. जब एक व्यक्ति हकलाता है, क्या हम लोग सोच सकते हैं कितना उसको अजीब लगता होगा। Sometimes they have to stop and get the speech back. कभी कभी हम लोग को रुकना पड़ता है बीच में, फिर उसको वापस से शुरू करना पड़ेगा। I had a close friend of mine in college who used to stammer. मेरे एक बहुत ही खास दोस्त था कॉलेज के दिनों में से जो हकलाता था। He was so clever, he knew the answers. वो हमेशा बहुत ही बुद्धिमान था, हर एक सवाल का जवाब उसके पास था। He would put his hands up. हमेशा हाथ ऊपर करता And था teacher said, answer. और फिर टीचर बोलती थी हाँ जवाब दो, And he would stand up, start answering, and then he would stop. और फिर वो खड़ा रहता था, खड़ा होता था, जवाब देने की कोशिश करता था, लेकिन अटक जाता था। Stammer, and ultimately he would sit down without answering the question. फिर हकलाते हुए फिर वो छोड़कर बैठ जाता था। What an embarrassing situation. तो कितना शर्मिंदा की बात So है। Paul was put in a terribly embarrassing situation. तो अपोस्तल पौलुस भी ऐसे एक बहुत ही शर्मिंदा वाली परिस्थिति में था। In front of all the churches and different believers. सब अलग-अलग कलीसिया और विश्वासियों के सामने। Then what should you do when we have such a problem? तो हमें क्या करना है जब हम लोग ऐसे परेशानी से गुजरते हैं? He's asked the Lord, please take it away from me. तो उसने फिर बोला, अपोस्तल पौलुस ने बोला, प्रभु ये परेशानी को मुझसे दूर ले लो। He entreated to the Lord. He pleaded with God, please take this away from me. उसने निवेदन किया प्रभु की ओर कि प्रभु ये मुझसे आप दूर ले लो। Not once, twice, 3 times. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन 3 बार। But the Lord told him, लेकिन फिर प्रभु ने उसे बोला, my grace is sufficient for you. मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My power is perfected in weakness. मेरी शक्ति तेरी निर्बलता में ही सिद्ध होती है। Sometimes when there are earthly situations and problems are so tight, we ask God, Lord, what shall you please take it away from me? कभी-कभी हमारे संसार की परेशानियां इतना खराब होता है, हम लोग बोलते हैं कि प्रभु ये सारी चीजों को बस तू मुझसे दूर ले ले। Sometimes it may be a sickness, it may be a boss, it may be some relative. Say, Lord, please take this away from me. कभी-कभी एक बीमारी हो सकती है, हमारे दफ्तर का मालिक हो सकता है या कोई रिश्तेदार हो सकता है, हम लोग बोलते हैं कि प्रभु ये परिस्थिति से तू मुझे बचा। And it's good to ask God for that. और अच्छा होता है ऐसा प्रभु से मांगना। Sometimes God answers immediately. कभी-कभी प्रभु तुरंत उसका जवाब दे देता। Sometimes God says, just wait. लेकिन कभी-कभी प्रभु बोलते कि नहीं अभी रुको। Sometimes you wait. थोड़े टाइम के लिए रुको। And then God told Paul, you wait. और फिर प्रभु ने अपोस्तल पौलुस को बोला कि अब तुम रुको। And they said, my power will be perfected in your weakness. और उन्होंने बोला कि तुम्हारे निर्बलता में मेरी शक्ति सिद्ध होगी। What is God's power? Is God's tremendous, the whole power of the Holy Spirit to really love people and to do everything that is well pleasing in His sight. प्रभु की शक्ति क्या है? जो पवित्र आत्मा से हमें शक्ति मिलती है लोगों से प्रेम करना और वो हर एक चीज से प्रेम करना जो प्रभु के नजरों में अच्छा है। That's why then the Apostle Paul said, most gladly will I rejoice in all my weaknesses. इसलिए अपोस्तल पौलुस ने फिर बोला कि मैं एकदम आनंदित रहूंगा मेरे हर एक निर्बलता में। That the power of Christ will dwell in my life. क्योंकि ये सारी निर्बलता में प्रभु यीशु की शक्ति मेरे जीवन में आती है। What is the power of Christ? The anointing of the Spirit. तो प्रभु यीशु की ये शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। See, let everything be lost in our life, but don't let lose the anointing of the Holy Spirit. भले अपने जीवन में तुम जो कुछ भी खो बैठो, लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा को मत खोना। David said, Lord, do not take your spirit away from me. दाऊद ने बोला कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत लेना। Let me lose my job, let me have sickness, but do not take your Holy Spirit from me. भले मैं अपना काम खो बैठूं, भले मैं बीमारी से हूं, लेकिन कभी अपने पवित्र आत्मा को मुझसे मत लेना। I may not have a ministry, but Lord, you should always be close to me. भले मैं कभी सेवकाई में नहीं आऊं, लेकिन हमेशा मुझे आपके निकट रहना है। That is the presence of God. यह है प्रभु की उपस्थिति। That is the greatest thing that we can have. It's nothing and not our home, our clothes, our children, anything, but it's the anointing of God, the power of God on my life. और प्रभु की उपस्थिति और उसकी अभिषेक मेरे जीवन में सबसे महान चीज है जो मैं कभी भी पा सकता हूं मेरे जीवन में, उसकी तुलना में बाकी हर एक चीज कुछ भी नहीं है। That's why the Apostle Paul, verse 10, it says in chapter 12, verse 10, therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions and difficulties. और इसलिए यहाँ पे चैप्टर 12 वाक्य 10 में I am well content with weaknesses. तो यहाँ पे मैं संतुष्ट हूँ हर एक निर्बलता में। What is weaknesses? निर्बलता में क्या? निर्बलता का मतलब? When do we become weak? When we get sick. हम लोग निर्बल कब होते हैं? जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। Suppose you get a cough and cold and a lot of viral fever. अगर सोचो बुखार आ जाता है या खांसी आ जाती है, You feel very weak. तो हम लोग उस समय बहुत ही निर्बल महसूस You करते should हैं। ask God, Lord, please touch and heal me. तो वे बोला कि प्रभु तू मुझे छू और मुझे चंगाई दे। Sometimes we ask God, Lord, make me okay today only. कभी-कभी हम लोग बोलते हैं कि प्रभु तू मुझे तुरंत चंगाई दे। But God sometimes does that. कभी-कभी प्रभु करते हैं ऐसा। But God sometimes just delays it for 2-3 days. लेकिन फिर कभी-कभी प्रभु 2-3 दिन उसे रुका देते हैं। And then we lie down in bed. और हम लोग फिर बिस्तर में पड़े रहते And हैं। then we think about God. फिर हम लोग प्रभु के बारे में सोचते हैं। And then we draw close to God. और फिर प्रभु के निकट हो जाते हैं। Then we thank God, say, Lord, I thank you, Lord, for making me sick, because then you spoke to my heart. फिर हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे बीमारी दी ताकि मैं तेरे बारे में सोचूं और तेरे पास आऊं। When I was well, I was running here and there. जब मैं एकदम
तंदुरुस्त था, मैं उधर उधर भाग रहा था। There are so many believers sometimes who are so sick. और कितने बार कई सारे जो विश्वासी हैं वो लोग बीमार रहते हैं, Because of that, they have come close to God. और उसके द्वारा वो लोग प्रभु के निकट आते हैं। God has spoken to them and changed their life. प्रभु उनसे बातें करते हैं और उनके जीवन को बदल देता है। There are some people who have not been healed at all of their sicknesses. और कैसे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपनी बीमारी से चंगाई नहीं पाते। There is one sister known as Fanny Crosby who wrote one of these beautiful songs that we sing in English. फैनी क्रॉस्बी करके एक बहन थी जिन्होंने कई सारे गीत लिखे थे जो हम लोग आज गाते हैं। Pass me not, O gentle Savior. जैसे मुझे छोड़ मत मेरे उद्धारक। She was blind when she was young. तो जब वो छोटी थी वो अंधी हो गई थी। When she became old, she became a born again Christian and she wrote so many songs. तो जैसे वो बड़ी बुजुर्ग होने लगी उस समय वो प्रभु में आई, फिर उन्होंने कई सारे गीत लिखे। Things like Blessed Assurance. जैसे ब्लेस्ड एश्योरेंस जो गीत है, But God never healed her. लेकिन फिर भी प्रभु ने कभी उसको चंगाई नहीं दी। She was the finest songwriter that ever wrote. वो Never- वो हो सकता है कि सबसे बेहतरीन गीतकार हो जिसने इतने सारे अच्छे गीत लिखे। She never wrote for money. वो कभी पैसे के लिए उसने गीत नहीं She लिखा, never wrote for fame. कभी मशहूरी के लिए उसने गीत नहीं लिखा। But she died at the age of nearly 90. और 90 साल के तक वो जी, But she was so happy with the Lord. लेकिन वो प्रभु में हमेशा खुश रहती थी। She said, when I go to heaven, the first person I want to see with my eyes is Jesus. उसने बोला कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मेरे आंखों के साथ सबसे पहले व्यक्ति जिसको मैं देखना चाहती हूँ वो है प्रभु यीशु। I don't know how human beings look like, but the first person I want to see is मैं Jesus. जानती नहीं हूँ कि लोग कैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले प्रभु यीशु को देखना है। See, her songs are such a blessing to all of us. तो उन्होंने जो गीत लिखे हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए कितने आशीष के गीत हैं। All of God's children, God's best children go through lots of problems and difficulties. प्रभु के जो सबसे बेहतरीन बच्चे होते हैं वो लोग जीवन में बहुत सारी परेशानी के द्वारा गुजरते हैं। The Apostle Paul feels insults. अपोस्तल पौलुस ने कई सारे अपमान भी सहे। He one of the best apostles, he got a lot of insults. वो सबसे अच्छा अपोस्तल था, लेकिन इसके बावजूद उसने कितने सारे अपमान सहे। So if you get an insult in your office, तो जब तुम्हारा दफ्तर में तुम्हारा अपमान होता है, if somebody insults you at home, कोई तुम्हारे घर में तुम्हारा अपमान करता है, and we say thank you Lord. तो मैं बोला कि धन्यवाद प्रभु। Jesus, you got so many insults. प्रभु यीशु कितने लोगों ने तेरा अपमान किया, People spat on your face. कितने लोगों ने तेरे मुंह पे थूका। A person who has not done a single sin in his own life. एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप नहीं किया अपने जीवन And में, here am I, I've done such a lot of sins and so much of problems, and I'm feeling bad because there's somebody insulted और me. यहाँ पे मैं हूँ इतना पापी, इतने सारे गलत चीजें मैंने की है, इसके बावजूद मुझे बुरा लग रहा है कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया था। I've got so many difficulties in my life कितने सारी परेशानियां हैं मेरे जीवन में, and so many persecutions. कितने सारे लोग मुझे तंग कर रहे हैं। But the Apostle Paul said, through all these things I've learned, but I'm weak, then I'm strong. लेकिन अपोस्तल पौलुस ने बोला कि ये सब चीजों के द्वारा मैंने सीखा है कि जब मैं निर्बल होता हूँ उस समय मैं प्रभु में ताकतवर रहता हूँ। This is a glorious paradox of our Christian life. तो ये एक बहुत ही अद्भुत चीज है हमारे मसीह जीवन की, That when we are weak, then we are strong. कि जब हम लोग निर्बल होते हैं उस समय हम लोग ताकतवर होते हैं। When we are strong, we become weak. जब हम लोग ताकतवर रहते हैं उस समय हम लोग निर्बल होते हैं। When we weak, we come close to the Lord. जब हम लोग निर्बल होते हैं तब हम लोग प्रभु के पास जाते See, हैं। see how we did we first come to the Lord. That's stating. But first, how did we come to the Lord? तो हम लोग हर एक व्यक्ति यहाँ पर जब हम लोग प्रभु में सबसे पहले आए, कैसे आए थे? God makes us weak. प्रभु हमें निर्बल बनाता है। God really bashes up and really brings us to our knees. प्रभु हमें तोड़ देता है और घुटनों के बल ला देता है। The Apostle Paul, how did he come to the Lord? अपोस्तल पौलुस कैसे प्रभु के पास आया? He was made blind. उसको प्रभु ने अंधा कर दिया था, He was brought to his knees. वो अपने घुटनों पे आ गया था, And then he said, then he became born again. तब जाके उसने नया जीवन पाया। And God always wants to keep us on our knees. और प्रभु चाहते हैं कि हम लोग हमेशा हमारे घुटने पे आ जाएं, In humble dependence of God. हमेशा निर्बलता और नम्रता में प्रभु के ऊपर ही टेके रहे। We heard of the prodigal son. हमने वो छोटे बेटे के बारे में सुना, He acted such oversmart in his house. वो अपने घर में बहुत ही होशियारी दिखा रहा था, And he was not listening to anybody. किसी की भी नहीं सुन रहा And था he ran away. और भाग गया घर से। And God had to bring him up. He had to bring and sit with the pigs. And then he had to ask God, Lord, please help और me. फिर परमेश्वर को उसकी परिस्थिति एकदम खराब करनी पड़ी, उसको सुअरों के साथ बिठाना पड़ा, तब जाके वो उसको समझ आया। That's the only way. Because by nature we are very, very proud. वो एक ही तरीका होता है क्योंकि स्वभाव ही हम लोग बहुत ही घमंडी होते हैं। All of us sitting here have a lot of hidden pride in us. हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है हमारे अंदर बहुत सारा घमंड छिपी है। We may not look very proud here. यहाँ पे हम लोग घमंडी दिखते नहीं रहेंगे, The situations in life will show how proud we are. लेकिन जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में हमारा सारा घमंड बाहर आ जाएगा। That is the best place for us to humble ourselves. तो वो सारी परिस्थितियों में हमें खुद को नम्र बनाना है। And the best place to start to humble ourselves is just to keep our mouth shut as we और go. हम लोग इसका शुरुआत सबसे अच्छा जगह शुरुआत करने के लिए ये मामले में है हमारा मुंह बंद रखना। Job said, I keep my hand on my mouth. जैसे जोब ने बोला कि मैं अपना हाथ अपने मुंह पे रखता हूँ। I used to talk such a lot, मैं पहले इतना बहुत ज्यादा बोल रहा था, Lord, but I will not speak anymore. लेकिन मैं अभी से कुछ नहीं बोलूंगा। And then he started speaking. और उसके बाद फिर वो बोलने लगा। And God told him, you pray for your enemies. और फिर प्रभु ने उसको बोला कि तुम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, You pray for those who are harassing you and doing all these things to you, तुम उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, who accuse you such a lot. जो तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं। We don't like to do that, हमें अच्छा नहीं लगता है करना, but Job did it. लेकिन जोब ने किया। And after Job did it, God blessed him like anything. और जब जोब ने किया तो प्रभु ने उसको भरपूरी में आशीष दिया। See, when we start listening to God and we start praying for other people,
and all our people who harass us and talk ill about us, God starts blessing us. जब हम लोग प्रभु की बात सुनने लगते हैं और उन दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो हमें परेशान करते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देना चालू करता And है God forgives all the other people also. और प्रभु दूसरों को ही माफ कर देता है। God forgives our relatives. प्रभु हमारे रिश्तेदारों को माफ कर देता They है, also come into the kingdom of God. वो लोग भी प्रभु के राज्य में आ जाते हैं And we become better and better in our spiritual life. और हम लोग हमारे आत्मिक जीवन में और अच्छे बनते जाते हैं। That's why the end of Job was too tremendously good. इसलिए जोब का जो अंत था वो बहुत ही अच्छा था। He had so many children and so many, the God advanced his property like anything. फिर उसके पास कितने और बच्चे हुए और प्रभु ने उसको बहुत ज्यादा संपत्ति दिया, But he went through this hardships and trials. लेकिन उसके पहले वो कई सारी परेशानियों के द्वारा गुजरा। The picture of is that God wants our spiritual lives to be much, much better than from the beginning of our life, the end of our life than in the beginning. तो ये एक उदाहरण है हमारे लिए कि प्रभु चाहते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन का जो अंत है वो हमारी शुरुआत से बहुत ही अच्छा हो। God wants us to bless other people. प्रभु चाहता है कि हम लोग दूसरों के लिए एक आशीष He बने। said, when you get the anointing, the Spirit of the Lord is upon me, Jesus said, जैसे प्रभु यीशु ने बोला कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है to preach the good news, ताकि मैं सुसमाचार बोल सकूं, to break those people who are under the bondage, ताकि मैं जो लोग बोझ के लिए दबे हैं उनको छुड़ा पाऊं, to bring healing to the lives of people. ताकि मैं लोगों के जीवन में चंगाई ला सकूं। And God wants to use you and me by filling us with the Holy Spirit. और प्रभु चाहता है कि वो हमारा इस्तेमाल करे उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, And that's the purpose that God wants us to be. और वो उद्देश्य है प्रभु का हमारे जीवन के To लिए be a blessing to every family that is in the world. कि इस दुनिया में हर एक परिवार की ओर हम लोग एक आशीष बने। To the people whom we meet. वो लोगों की ओर जो जिनको हम लोग मिलते हैं, Whom are the people that we are going to meet? किन लोगों से हम लोग मिलते हैं? The people in our office, हमारे जो ऑफिस के लोग हैं, all the bad people. जो गंदे लोग हैं। Nobody is good in our office. हमारे ऑफिस में कोई भी अच्छा नहीं है, They are very cunning and crooked. बहुत ही सब शाने लोग हैं, But God wants us to be a blessing to लेकिन them. प्रभु चाहते हैं कि हम लोग उनकी ओर भी एक आशीष बने, To our relatives in our home. हमारे रिश्तेदारों की ओर जो हमारे घर में रहते हैं, And the people in our neighborhood. और हमारे जो आजू बाजू के पड़ोसी हैं, These are the people whom we are supposed to touch. ये सब लोग हैं जिनको हमें छूना है। And suppose we are so taken up with our own problems, लेकिन अगर हम लोग खुद की समस्या में उलझे रहेंगे we are neither a blessing to us and we become a curse. तो ना हम लोग किसी की ओर आशीष बनेंगे, लेकिन उन हर एक की ओर एक परेशानी या एक श्राप बन जाएंगे। This is God's methods, ये है प्रभु के तरीके, God's ways. प्रभु के मार्ग। So now we are going to face a lot of problems we don't know, and all these surprise tests will come all of a sudden. और हम लोग बहुत सारी मुश्किलों के द्वारा गुजरने वाले हैं, सब अचानक से आने वाले हैं, But it's going to come to all of us. आने वाला है। People in this world grumble and murmur दुनिया के लोग तो कुट करते ही हैं when things go wrong. जब भी गलत चीजें होती है, But the Holy Spirit has told us, now you don't murmur, thank God. लेकिन पवित्र आत्मा में बोलता है कि तुम कुट मत करो, प्रभु को धन्यवाद In दो, everything give thanks.